Okay, in this video I'm going to show you how I'm going to do keyword research or keyword analysis around nutrition. So as I said, I'm going to open this window in incognito and gonna go on YouTube and I'm going to type nutrition. Up nutrition mein there are these keywords that are coming up, right? And I can see that all of these keywords are probably not relevant to me because these seem like this is around academics, but still these keywords are important. So because this gives me an idea कि nutrition के around लोग क्या search कर रहे हैं. So what I would do is I would just type it as it is. Let's say I'll just go for the sake of convenience, I'm just gonna show you in this mode. Here I'm just gonna type, let's say, nutrition, and you can see the suggestions are pretty much the same because it's still in the same geo, which is India. So I'm just gonna type यहाँ पे, let's say keywords, which is nutrition, and then there is nutrition in plants class 7, nutrition in animals class 7, nutrition and its types, nutrition in human beings class 10. I hope record हो रहा है. हाँ ठीक है. Nutrition food, nutrition class 10, and then nutrition in plants, nutrition in animals, nutritionist, nutrition and its types and its types, JKSSB, nutrition suggestion 2024 HS, 2024 HS, nutrition by Khan sir, and then there is nutrition BSc nursing first year. These are the main keywords around nutrition. Now what I'll do is there are these different alphabets A to Z on the keyboard, and we're going to make use of these letters. So for example, nutrition में जब space type करता हूँ तो ये सब आता है. Nutrition and its types. These were already covered, so I'm just going to type the keywords. अच्छा ये भी covered है. Okay, ये सारे covered. I'm just looking for something that कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं cover किया होगा. So let's say यहाँ पे nutrition in amoeba है, nutrition class 9 ICSE है. I'm just gonna type nutrition in amoeba, nutrition class 9 ICSE. Now you can see कि ये जो list of keywords है around nutrition, वो सबसे पहले मैं स्कैन करता हूँ. So वो मैं कैसे स्कैन करता हूँ? पहले nutrition लिखा, न्यूट्रिशन लिखने के बाद स्पेस दबाया, ये दिख रहा है कि कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं. अब मैं कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाता हूँ लेटर्स के साथ. आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. सो न्यूट्रिशन के बाद मैं स्पेस दबाने के अगर मैं क्यू लिखता हूँ तो न्यूट्रिशन क्यू में जितने भी कीवर्ड्स है वो आ जाते हैं. इफ़ आई रिमूव क्यू एंड इफ़ आई टाइप डब्लू, ये डब्लू से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो आ जाते हैं. ठीक है. सिमिलरली ई, देन आर, देन टी, देन वाई, then U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C,
VBNM, ठीक है। अब ये सारा जो है, दिस इज़ द कीवर्ड सेट दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय कीवर्ड सर्च ऑफ यूट्यूब। दिस इज़ यूजफुल बिकॉज इट टेल्स अस कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। नाउ मुझे क्या जानना है, माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड कि मेरे ब्रांड से रिलेटेड या मेरे को जिस नीश में बनाना है कंटेंट, उस नीश के अराउंड क्या कीवर्ड्स सर्च हो रहे हैं। दैट इज़ एसेंशियली व्हाट आई वांट टू नो। सो उसके लिए मैं ये सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई करके मैं उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करूँगा जो मेरे नीश से रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंटेंट बनाता एकेडमिक्स में, लेट्स से बीएससी नर्सिंग के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ न्यूट्रिशन के नीश में, उस केस में मैं ये सर्च करता एंड देखता कि इस टॉपिक में लोग कैसी टाइप की वीडियोस देख रहे हैं। ओके, सो आई थिंक नीश में सब नीश और सब टॉपिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एंड इसको तुम इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सेट है, उसके अंदर सबसेट है न्यूट्रिशन, या सब टॉपिक है कुछ और। सो फॉर एग्जांपल आई वुड, जैसे इसमें नीश इज़ न्यूट्रिशन हमने सिलेक्ट किया है, देयर कुड बी सब नीश सब टॉपिक्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, nutrition could be in context of let's say BSc nursing first year, or nutrition could be in context of just general knowledge, nutrition and its types. I think this is the general knowledge video, types of nutrition. Okay, this is also academics. So I think categorization of the niche is important. So यहाँ पे nutrition could be in the context of academics. Even in academics, there could be a subcategory of, let's say, BSc nursing, right? And this could be like class 10th, NCERT class 10th, or NCERT class 10th, right? So nutrition could be the niche, sub niche could be academics, or context or sub niche could be academics, and then subtopic could be academics के अंदर भी it could be like BSc nursing or NCERT science class 10. So the context of nutrition is important कि nutrition किस context में यूज़ हो रहा है। इस केस में वेलबींग न्यूट्रिशन जो ब्रांड है, इस केस में द क्वेश्चन है दैट आई गेव द पर्सन, that person told us that person, उनका जो ब्रांड है, जो कंपनी है, it exists to make nutrition easy, quick, clean, transparent for customers. Okay, and these are the values or the principles that the brand or the company is promising. So we believe that food feeds us mentally, physically and emotionally. Using safely sourced pure ingredients and careful processes, we make sure that the right nutrients stay locked in, therefore making health easy, convenient and delicious for you. So what are the keywords that we can imagine in this particular category? So nutrition, or let's say keywords, of course nutrition, but in the context of what? Health, food, right? That's what we are seeing here. Safely sourced pure ingredients. And then what else? Careful process to ensure the right nutrients stay locked in. They will make health. मैंने लिख लिया health already. Easy, convenient and delicious for you. And food में हम eating, what are the different alternatives
around food that people may use, right? So एंड ये ऑल्टरनेटिव, ये बेसिकली ये हिंदी में भी हो सकता है कीवर्ड्स. इन दिस पर्टिकुलर केस कुड बी इन अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल्सो. टू बिगिन विद अभी के लिए लेट्स जस्ट फोकस ऑन इंग्लिश, बट आई एम सेइंग कि ये डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल फूड को लोग टाइप कर सकते हैं खाना के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ खाना, सो यू कैन सी हियर यहाँ पे लोग हिंदी में लिख रहे हैं, राइट. सिमिलरली कोई मराठी में लिख सकता है या बंगाली में लिख सकता है. सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकता है. सो वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट एज वेल. बट फॉर नाउ वी कैन जस्ट फोकस ऑन इंग्लिश, बिकॉज जो क्लाइंट का टारगेट है, ऑडियंस है, दैट इज़ tier 1 premium audience and English focused audience. Okay, but for our case we should be able to do the same thing in different contexts, different languages also. So let's say कि ये keywords हैं now, and अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो keywords आ रहे हैं I'll just keywords list पहले मैंने एक formulate कर लिया है एक particular document में, A to Z. फॉर्मुलेट A to Z कीवर्ड्स लिस्ट अराउंड न्यूट्रिशन, ये मेरा एक स्टेप था. उसके बाद मैं शॉर्ट लिस्ट करूँगा रेलेवेंट कीवर्ड्स को, रेलेवेंट कीवर्ड्स अराउंड द ब्रांड नीश. सो इस केस में मैंने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो मेन 4 फॉर एग्जांपल जो हैं, जो मैंने खुद से किया है, अभी तक मैंने रिसर्च नहीं किया है, आई एम जस्ट गोना go ahead with these 4 and इसमें भी नैरो डाउन करूँगा मैं कि क्या है कीवर्ड. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यूट्रिशन, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो न्यूट्रिशन कौन से कीवर्ड्स हैं जो इस ब्रांड के अराउंड रेलेवेंट है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7, ये सब रेलेवेंट नहीं है. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, ये मैं चेक करूँगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं. जब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, आई विल टू सी कि ये सब एकेडमिक्स है, तो ये रेलेवेंट नहीं है मेरे, तो मैं इसको बैक चला जाऊँगा. तो ये भी न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स भी रेलेवेंट नहीं है. अब मैं दोबारा न्यूट्रिशन टाइप करूँगा एंड देखूँगा न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, न्यूट्रिशन फूड, ये देखूँगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं. तो ये रेलेवेंट है, फ्रॉम हेल्थ सोर्सेज लिखा रहा है, ये रेलेवेंट है, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे यू कैन सी हियर समहाउ आई डोंट नो ये यूट्यूब मेरा वॉइस ट्रैक कर रहा है कि नहीं, बिकॉज आई एम स्पीकिंग. I don't know if this is tracking my voice, but this nutrition food जब मैं लिख रहा हूँ ना, तो YouTube को I think context मिल रहा है. Somehow when I'm typing nutrition food, let me see whether I wrote that keyword nutrition food. So I'm just gonna mark it bold. In fact bold mark करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, because मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से. So यहाँ पे nutrition जब मैं लिख रहा हूँ, so न्यूट्रिशन फूड, ये रेलेवेंट है. तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि ये जो कीवर्ड है ये रेलेवेंट है मेरे लिए. मैंने यहाँ पे बोल्ड भी हाईलाइट कर दिया है, ठीक है. न्यूट्रिशन फूड मेरे लिए रेलेवेंट है. और कौन सा रेलेवेंट है मैं देख रहा हूँ. न्यूट्रिशन क्लास 10th रेलेवेंट नहीं है. इन प्लांट्स आई थिंक ये भी रेलेवेंट नहीं है, मोस्ट लाइकली ये भी रेलेवेंट नहीं है. इन एनिमल्स भी रेलेवेंट नहीं होगा मोस्ट लाइकली. न्यूट्रिशनिस्ट शायद रेलेवेंट हो सकता है, हाँ ये भी रेलेवेंट नहीं है. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स फूड एनिमल्स न्यूट्रिशन, एक सेकेंड. अब ये ना थोड़ा बायस कर देता है ये एल्गोरिदम, बिकॉज आई एम सर्चिंग एक्टिवली. न्यूट्रिशन अभी न्यूट्रिशनिस्ट आया था, अभी चला गया. कैन यू सी somehow it just went away, but it should show. हाँ अभी आया था न्यूट्रिशनिस्ट, सॉरी. तो यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट है, राइट. सो आई एम जस्ट गोना सी whether this is relevant. Okay, now I can see that I am a nutritionist. Nutritionist answers diet questions. This is important because this is related to diet. So I know one more keyword. Food का एक और keyword हो सकता है जो है diet, which is English keyword. So I'm just writing it down here. उसके बाद I am just writing how to become a nutritionist in India, registered dietitian. Okay,
सो यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड मुझे मिल गया, डाइटिशियन, इंग्लिश कीवर्ड है, रिलेटेड टू फूड है। हाउ टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया, ये भी रेलेवेंट कीवर्ड है बिकॉज ये खाने के अराउंड है। तो अब मैं यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट लिखूँगा, ये कीवर्ड भी एंटर कर दूंगा क्योंकि ये न्यूट्रिशन के अराउंड है। न्यूट्रिशनिस्ट इज़ वन मोर कीवर्ड दैट वी फाउंड। ओके, अब मैं वापस पीछे जाऊँगा, वापस न्यूट्रिशन लिखूँगा एंड देखूँगा न्यूट्रिशनिस्ट एंड टाइप्स, जे केसेस भी, ये सब मुझे वापस से लग रहा है कि ये किताबी कीवर्ड्स हैं विच वोंट बी रेलेवेंट। ओके, सो अब मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा, बैक करूँगा यार, यहाँ पे वापस से न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सब एग्जॉस्ट कर लिया है मैंने। अब मैं नेक्स्ट कीवर्ड आऊँगा यहाँ पे हेल्थ के अराउंड पे। ओके, एंड लेट्स से हेल्थ के अराउंड में मैं आया तो यहाँ पे लिखा है हेल्थ टिप्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ हाइजीन, हेल्थ कार्ड कैसे बनाए, हेल्थ ओके, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंजाइटी, हेल्थ टिप्स। हेल्थ टिप्स में देख सकते हैं कि क्या है ये, राइट, टिप्स फॉर योर इम्प्रूविंग योर हेल्थ। अब ये ना यहाँ पे जो टिप्स, हेल्थ टिप्स है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ वीडियोस जो हैं हेल्थ टिप्स में, विच दीज आर अराउंड न्यूट्रिशन एंड फूड एंड जब हम हेल्थ टिप्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फूड आता ही है। सो आई एम स्टिल गोना राइट हेल्थ टिप्स एज अ कीवर्ड हियर। ओके, एंड उसके बाद मैं हेल्थ के अराउंड देख रहा हूँ और कुछ है कि नहीं। हेल्थ टिप्स, हेल्थ एंड फिटनेस मैं देखता हूँ एक बार क्या है। हेल्थ एंड फिटनेस में मोस्ट लाइकली वर्कआउट आएगा। हाँ, सो कैन यू सी यहाँ पे ज़्यादा वर्कआउट आ रहा है, ज़्यादातर पीपल आर टॉकिंग अबाउट वर्कआउट। साइंस ऑफ ईटिंग हो सकता है वर्ड, फूड में ईटिंग, मैंने ईटिंग देखा यहाँ पे कीवर्ड जो रेलेवेंट है। उसके बाद और क्या हो सकता है, ये सब ज़्यादातर मुझे एक्सरसाइज ही लग रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब मैं यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस टाइप कर रहा हूँ, जो मुझे रेलेवेंट लग रहा है इस ब्रांड के साथ, विच इज़ गट। बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, गेट द रिलीफ यू नीड फ्रॉम अनकम्फर्टेबल ब्लोटिंग विदाउट साइंस बैक्ड प्रीबायोटिक्स। वाई इज़ इट रेलेवेंट? बिकॉज यहाँ पे एक ब्रांड का वो है, एक सेकेंड, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। सो की फॉर ये रहा, तो यहाँ पे देख रहे हो, फॉर गट हेल्थ प्रोटीन फॉर शिलाजीत। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स भी हैं मतलब। सो अगर मैं लेट्स से ये कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली चेक फॉर दीज कीवर्ड्स एज वेल। सो यहाँ पे आई वुड जस्ट एंटर दीज कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स के अंडर। सो हेल्थ के अंदर आई वुड जस्ट राइट gut health. I would write gut health. I would write protein, food के अंदर कहीं पे I would write शीलाजीत हेल्थ के अंदर कहीं पे, बिकॉज ये हेल्थ के अंदर आएगा। एंड शीलाजीत इंग्रेडिएंट्स के अंदर तो नहीं आएगा। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। वैसे तो ये दवाई है, तो दवाई किस में आएगा? आई थिंक शिलाजीत इज़ लाइक अ मेडिसिन, सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, तो ये किस में आएगा? आई थिंक लेट्स जस्ट से इट्स वन ऑफ द रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड नॉट वरी अबाउट द कैटेगरी एज सच। तो लेट्स से कि शिलाजीत भी है एंड इंग्रेडिएंट्स, एंड एक और इसमें मैं कैटेगरी बनाता हूँ कॉम्पिटिटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, तो इस कीवर्ड्स में से हम जस्ट गोना कॉपी पेस्ट द गुड वर्क, कॉपी पेस्ट ओजीवा, कॉपी पेस्ट कपीवा। दीज थ्री आर द कॉम्पिटिटर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, I'm gonna go यहाँ पे मुझे एक और कीवर्ड दिखा, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, राइट. तो मैं मेटाबॉलिज्म भी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे नीचे आके नीचे आके ठीक है. आई थिंक बाकी सब ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है. टिपिकली वी लुक एट द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट्स, ओके, एंड नॉट डोंट गो टू फार डाउन. अब यहाँ पे नीचे आई एम जस्ट गोना सी न्यूट्रिशन फूड, लेट्स से. एंड मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है. मैं बस क्या करूँगा, अब नीचे कॉम्पिटिटर्स के पास जाऊँगा, गुडबग. मैं देखूँगा कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे टाइप के, मतलब इस नीश में. बेसिकली ये कॉम्पिटिटर्स का मतलब ये है कि इनके नीश में, इनके कैटेगरी में ये कॉम्पिटिटर्स हैं. तो इसका मतलब ये जो ब्रांड्स हैं ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं. तो ये कैसे टाइप के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, इनके सबसे टॉप मोस्ट सर्च वीडियोस कौन से हैं. तो आई एम जस्ट गोना टाइप लाइक गुडबग. इससे मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इस कैटेगरी के बारे में, लाइक इस नीश के बारे में. तो आई एम जस्ट गोना टाइप लाइक, कॉपी करूँगा इसको और पेस्ट करूँगा यहाँ पे गुडबग. गुडबग टाइप करने के बाद ना मुझे ये सब दिख रहे हैं, गुडबग प्रोबायोटिक्स रिव्यू. तो मुझे यहाँ पे प्रोबायोटिक्स मिल गया, एक कीवर्ड प्रोबायोटिक्स, ठीक है. फिर मुझे यहाँ पे गुडबग मेटाबॉलिकली लीन रिव्यू. आई एम एज्यूमिंग कि ये कोई दवाई है, मेटाबॉलिकली लीन. इसका मतलब क्या है, ये कोई चीज़, मतलब कोई वो है, ये गुडबग देख रहे हो. तो अब मेटाबॉलिक एक कीवर्ड है जो मैंने आई थिंक ऑलरेडी लिखा है, मेटाबॉलिज्म. प्रोबायोटिक्स मैंने लिख लिया. ब्लोटिंग एक इशू है जो न्यूट्रिशन या खाने से रिलेटेड है. तो मैं यहाँ पे ब्लोटिंग जो है हेल्थ या फूड, हेल्थ में ब्लोटिंग लिख सकता हूँ क्योंकि एक प्रॉब्लम है. एंड देन आई एम गोना राइट, लेट्स से गुडबग बाय बाय ब्लोट, गुडबग वेट लॉस. सो वेट लॉस भी हम कर सकते हैं यहाँ पे टारगेट, बिकॉज ये भी खाने से रिलेटेड है. गुडबग PCOS प्रोबायोटिक्स, PCOS भी लिख सकते हो. PCOS नहीं लिख सकते हो, PCOS रिलेटेड नहीं है न्यूट्रिशन से. AD गट बैलेंस भी है. एंड देन यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू, बस इतना ही. IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आई थिंक IBS गुडबग IBS, आई थिंक. एक सेकेंड, यहाँ पे आपको नीचे जब जाओगे तो IBS यू कैन जस्ट राइट कोई पागल है जो गाना बजा रहा होगा इतनी रात को. एनीवेज, सो IBS यहाँ पे हाँ. सो IBS आई थिंक इट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. हाँ. सो यहाँ पे यू कैन जस्ट राइट, आई जस्ट राइट IBS, लेट्स से हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है. ये गुडबग का हो गया एनालिसिस. अब यहाँ पे नीचे आऊँगा, आई थिंक प्रोबायोटिक्स, एक्चुअली हेल्थ में लिखते तुम प्रोबायोटिक्स, इसकी भी यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. ओजीवा फिर लिखूँगा सेम. एंड ओजीवा में जब लिखूँगा तो यहाँ पे सप्लीमेंट्स. सो बेसिकली ये जो नीश है इनका, वेलबींग न्यूट्रिशन, दे आर इन द सप्लीमेंट्स कैटेगरी, ठीक है. ये जो है सप्लीमेंट्स है, ये इन्होंने कहीं पे लिखा नहीं है.
पता नहीं लिखा है कि नहीं। तो न्यूट्रिशन चॉइसेस, सोर्सिंग, हाई पोटेंसी, बायोअवेलेबिलिटी, एक सेकेंड, जस्ट सीइंग। यहाँ पे इन लोगों ने बेसिकली प्रोफाइल दे रखा है कि कौन है। हाँ, सप्लीमेंट्स कीवर्ड है, ये कीवर्ड्स भी आएंगे एक्चुअली। सो लेट्स से कि व्यूअर जो है, आइडियल व्यूअर, आइडियल व्यूअर के कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो वो नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं, सप्लीमेंट्स टाइप करता हूँ मैं। सो सप्लीमेंट्स, पीपल न्यू टू सप्लीमेंट्स, प्लांट बेस्ड ईटर्स, तो प्लांट बेस्ड कीवर्ड हो गया, ठीक है। प्लांट बेस्ड में एक और कीवर्ड आता है यूजुअली, वीगन्स, ठीक है। तो ये वीगन्स आ गए। वेजिटेरियंस नीडेड स्पेसिफिक विटामिन्स और मिनरल्स ऑफन लैकिंग इन डाइट। तो यहाँ पे वेजिटेरियंस भी लिख सकते हो तुम, क्योंकि वेजिटेरियंस के डाइट में कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। सो वी कैन राइट वेजिटेरियंस, उसके बाद ऊपर आके सप्लीमेंट्स, डाइटरी टिप्स, आई थिंक ये ऑलरेडी डाइटरी टिप्स हो सकता है, ऐसे डाइट टिप्स मैं लिख सकता हूँ इसको। उसके बाद ऊपर फिटनेस एंथुजियास्ट एंड एथलीट्स सीकिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट्स। तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग एक कीवर्ड हो सकता है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग, ठीक है। उसके बाद हो सकता है स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स, सो इंडिविजुअल्स मैनेजिंग स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन लाइक हार्ट डिजीज़। ये सारे कीवर्ड हमें लिखने हैं। हार्ट डिजीज़, कॉग्निटिव डिक्लाइन, जॉइंट पेन, ओमेगा 3s जो भी है ये, स्पेशलाइज्ड मल्टीविटामिन्स, people interested in natural and holistic approaches to holistic approaches to well-being, preventive health and overall nutrition. People interested in natural and holistic approaches to well-being. तो यहाँ पे मैं होलिस्टिक हेल्थ टाइप कर सकता हूँ, प्रिवेंटेटिव हेल्थ भी टाइप कर सकता हूँ, ओवरऑल न्यूट्रिशन तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आई थिंक ये इससे कवर हो जाता है। पिकी ईटर्स, ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं पिकी ईटर लिख रहा हूँ। वीगन्स, एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, तो यहाँ पे मैं एथलीट्स भी लिख रहा हूँ। एथलीट्स के लिए डाइट बेसिकली, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, स्पोर्ट्स लेट्स से स्पोर्ट्स फिटनेस एंथुजियास्ट, ठीक है। इससे थोड़ा आइडिया मिल गया कि किसके अराउंड, कौन से टॉपिक्स के अराउंड जो व्यूअर है वो वीडियो देखना प्रेफर करेगा या देखेगा या देखेगी।
ठीक है, ये मैं शीट बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई जस्ट गो ऑन द कंप्यूटर, डायरेक्टली कंप्यूटर के वेब चैनल पे जाऊँगा मैं, एंड आई जस्ट टाइप इट ऑन यूट्यूब एंड आई जस्ट गो ऑन दिस पेज, द गुड बक, दिस इज़ द पेज ऑफ द कॉम्पिटिटर। ओके, आई थिंक यही है, thegoodbuck.com मोस्ट लाइकली। सप्लीमेंट है ना ये, हाँ, तो ये गट हेल्थ के लिए है। सो एज यू कैन सी कॉम्पिटिशन्स को लोग कैसे कॉपी करते हैं। इनका जो वेबसाइट है, यू विल सी द एग्जैक्ट सेम थिंग यहाँ पे। इसीलिए दिस इज़ वाई इन आवर कंपनी, इन वट एवर दैट वी आर बिल्डिंग, विल नेवर follow competition, we will never even talk about competition, because we are making something which is not at all relevant to competition. We are not here to compete with anyone. We are here to solve a problem in the most effective way for ourselves and for people who may need it. Now I'm just going to show you the example or the negative influence or the negative what happens when you look at competition. जस्ट सी दिस, इनके वेबसाइट में जाओ, वेलबींग न्यूट्रिशन, ठीक है, नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, ये देखो एग्जैक्ट सेम थिंग चिपकाया है, कॉपी पेस्ट किया है, देख रहे हो, ये देखो इनका भी एग्जैक्ट सेम थिंग है, सेम इन्फ्लुएंसर सेम चीज़ कर रहे हैं ये लोग भी, इन लोगों ने एग्जैक्ट सेम छापा है। सो मुझे कॉम्पिटिशन को नहीं देखना है, ठीक है, आई डोंट वांट टू लुक एट कॉम्पिटिशन, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट वर्किंग विद दिस ब्रांड, बिकॉज दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन सेलिंग, ठीक है, लाइक ऑल देयर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, सेम स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग सेम। सो एनीवेज, दिस इज़ देयर कॉम्पिटिटर। इनके वेबसाइट, इनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं गया, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, 100 वीडियोस बना रखे हैं, देखते हैं जो 1000 सब्सक्राइबर्स है उसमें से कोई वीडियो चला है कि नहीं चला है, एंड चला है इन द सेंस ऑर्गेनिकली चला है कि नहीं चला है। दीज लुक लाइक ऑल दीज वीडियोज आर दे आर ऑल प्रोमोटेड, बिकॉज वाई, बिकॉज ये इन्फ्लुएंसर कर रही है वीडियो, राइट, मलिका शेरावत आई थिंक जो भी है ये, आई थिंक ये तो या मलाइकास चैलेंज है, राइट, तो ये जो है ये इन्फ्लुएंसर लेड है, सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट ऑर्गेनिक। सो दीज लुक लाइक आई एम जस्ट गोना गो टू पॉपुलर, आई एम गोना सी कि कोई पॉपुलर है कि नहीं। ये सारा जो है दिस लुक्स लाइक प्रोमोटेड, ऑल ऑफ देम लुक्स लाइक प्रोमोटेड, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग। ये भी इन्फ्लुएंसर है, आई थिंक ये क्रिकेटर का वो लिया हुआ है, पार्टनरशिप कर रखा है, ये भी इन्फ्लुएंसर ही होगी कोई, आई एम वेरी श्योर। एफर्टलेस वेट मैनेजर, ये देखो सेलिब्रिटी एंडोर्स्ड, तो समीरा रेड्डी से के साथ किया है। सो या दिस इज़ नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक। सो ये सारा जो है इन लोगों ने जो है कुछ भी इनका ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजी नहीं है। सो वी डोंट नीड टू लुक एट दिस चैनल एट ऑल, देयर इज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम this channel at all, because none of it is organic. ओके, तो इनके जो ऑर्गेनिक वीडियोज़ है देख सकते हो, उसमें 80 व्यूज़ है, 47 व्यूज़ है, 66, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक। बाकी सारा इनका प्रोमोटेड वीडियोज़ है, बिकॉज इनकी टीम को पता ही नहीं कि करना क्या है, कैसे ऑर्गेनिक में व्यूज़ लाने हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इसको कैंसिल करते हैं। ये इस ब्रांड को, इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो ऑर्गेनिक वीडियोस फाउंड, मोस्टली प्रोमोटेड वीडियोस। नाउ नेक्स्ट में मैं जाऊँगा ओजीवा, ठीक है, ओजीवा में मैं यहाँ पे डालूँगा just gonna go on Oziva, and यहाँ पे Oziva TV has done some, looks like they have gotten some views. So what I'm gonna do is Oziva TV में जाऊँगा, इनके 186 सब्सक्राइबर्स हैं YouTube पे, and looks like they are doing something. Okay. Certified clean plant-based nutrition. Okay. तो यहाँ पे अब मैं नीचे जाऊँगा एंड वीडियोज़ में क्लिक करूँगा, एंड
आई एम जस्ट गोना सी यहाँ पे ये दीज आर डेफिनेटली रिलेटेड टू प्रोटीन, बट आई कैन ऑल्सो सी लाइक हेयर, यहाँ पे हेयर फॉल फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्रोटीन, सोया प्रोटीन, डीमिस्टिफाइंग सप्लीमेंट्स, यहाँ पे वेट लॉस है, हमने ऑलरेडी कीवर्ड लिखा है वेट लॉस, विटामिन D3 है, विटामिन भी शायद लिखा है मैंने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विटामिन्स कहीं पे तो लिखा है मैंने यार, स्पेशलाइज्ड मल्टीविटामिन्स, ठीक है, ये विटामिन D3 में आ जाएगा। उसके बाद आई जस्ट गो, हेयर फॉल नहीं लिखा मैंने शायद कहीं पे, तो यहाँ पे हेल्थ में मैं हेयर फॉल लिख देता हूँ। प्रोटीन, स्टॉप हैविंग प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट्स माई हेयर, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक हेयर एंड देन हेयर फॉल, ओके। तो यहाँ पे सैनिकास, ड्रीम्स ऑफ बल्कि बिग बिजनेस, और ये कुछ और ही है, ये कैंपेन्स चला रखे हैं, डॉक्टर, मेडिकल एस्पिरेंट, एम्पावर फार्मर, प्लांट बेस्ड डाइट, तो यहाँ पे डाइट का कैटेगरी एक आ गया, प्लांट बेस्ड डाइट, सो हमने यहाँ पे डाइट लिख रखा है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है, एंड देन वी गो डीपर एंड वी सी स्किन भी है यहाँ पे, ठीक है, स्किन लिख रखा है, यूथफुल स्किन लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन मैं लिखता हूँ, सॉरी फूड में नहीं आएगा, ये हेल्थ में आएगा, स्किन, एंड यहाँ पे PCOS है, तो आई थिंक PCOS भी लिख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर PCOS आएगा नहीं, बट एंटी एजिंग रूटीन, यहाँ पे एंटी एजिंग है, स्किन में आ जाएगा एंटी एजिंग, एंड PCOS लिख सकते हो, क्लीन फ्यूल, ये ब्रांड फिल्म, क्लीन फ्यूल फॉर योर वर्कआउट, क्लीन फूड, आई एम जस्ट क्यूरियस, क्लीन फूड के अराउंड कुछ सर्च है क्या, क्लीन फूड नहीं, ओ भाई है भाई, क्लीन फूड भी आ जाएगा एक, आई थिंक ये काफ़ी नीश होगा टर्म, बट लेट्स जस्ट से क्लीन फूड, ये भी एक कीवर्ड होगा, बाकी सब आई थिंक रेसिपी भी हो जाएगा यहाँ पे, उस गाजर का हलवा रेसिपी, ठीक है, तो फूड में रेसिपी, ठीक है, देन गो डाउन, क्लीन ब्यूटी भी एक टर्म है, प्लांट बेस्ड क्लीन ब्यूटी, आई थिंक यहाँ पे यू शुड राइट क्लीन ब्यूटी, ये सारे आई थिंक ये भी रेसिपी है, बाकी सर चैलेंजेस लग रहे हैं बाकी सब, तो मैं ऊपर जाऊंगा एंड जस्ट मैं वीडियोस में बाई पॉपुलर सॉर्ट करूंगा, ये सब लेटेस्ट है, जस्ट गो ऑन पॉपुलर, एंड पॉपुलर से मुझे समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये दीपिका पादुकोण, ये इन्फ्लुएंसर के साथ किया हुआ है, उसके बाद न्यूट्रिशन, ये भी कैंपेन है, हैशटैग दिख रहा है मुझे, ये भी कैंपेन है, फीचर्ड ये पर्सन है इन्फ्लुएंसर, ये सारे बूस्टेड है पोस्ट, सारे एड चला रखे हैं इन सारे वीडियोस में, ये सारे कैंपेन्स हैं, सो ऑल ऑफ दिस आई डोंट नो अबाउट दिस बिकॉज ये रेसिपी है, तो हो सकता है ये ऑर्गेनिक हो, आई एम नॉट श्योर, बट दीज आर ऑल डेफिनेटली ऑल बूस्टेड, सारा बूस्टेड है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक है, बट
या बिकॉज ऑल ऑफ देम लुक लाइक बूस्टेड. वेट लॉस हमने ऑलरेडी कीवर्ड लिख रखा है, वेट लॉस ऑलरेडी कीवर्ड लिख रखा है. मैं बस कीवर्ड्स एनालाइज कर रहा हूँ अभी इस वक्त. दिस वीडियो tutorial is only for showing you how I analyze and look at keywords that are relevant. So यहाँ पे I'm just seeing ये vitamins लिख रखा है ऑलरेडी, हेयर लिख रखा है, वेट लॉस लिख रखा है. ऐसा कोई कीवर्ड है जो मैंने नहीं लिख रखा है? I'm just scanning through them. प्रोटीन लिख रखा है, ईटिंग लिख रखा है, वेट लॉस लिख रखा है, योगा नहीं लिख रखा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आई थिंक ये नहीं लिखा है. ओके, योगा लिखते हैं. सेकंड, फिटनेस हेल्थ में योगा लिखा है, एक्सरसाइजेस लिखते हैं. बी बेटर विथ फूड, योगा, breathing exercises, right way to squat, exercises लिख सकते हैं, योगा लिख सकते हैं, फूड लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, रेसिपी लिख रखा है ऑलरेडी, बेटर आम पन्ना रेसिपी लिख रखा है. ये सारे रेसिपीज़ हैं. योगा है, ओके. एंड देन देयर इज़ इम्यूनिटी लिख रखा है, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं. आई थिंक इम्यूनिटी लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा है इम्यूनिटी. ठीक है. एंड देन ये सारे रेसिपीज़ हैं, ये एक्सरसाइजेस हैं. प्लांट बेस्ड लिख रखा है ऑलरेडी, फिट बॉडी एब्स चैलेंज ये सब ऑलरेडी लिख रखा है. ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में आ जाएगा आई थिंक ये. ब्रेकफास्ट शेक मैं यहाँ पे रेसिपीज़ में लिख सकता हूँ इसको. रेसिपीज़ में कहाँ गया, रेसिपीज़, लेट्स से ब्रेकफास्ट शेक. ठीक है, इसको ऐड कर दिया मैंने. उसके बाद नीचे हर्ब्स, वुमेन बेनिफिट्स, प्रोटीन, वेट लॉस, PCOS लिख रखा है ऑलरेडी, बेली फैट. वेट लॉस की जगह बेली फैट भी है, तो यहाँ पे आई एम जस्ट गोना go to, let's say, weight loss. Just gonna write here belly fat. Scroll down, then go to vitamins, skin vitamins, glowing skin, yoga asanas. योगा लिख रखा है, ये सब लिख रखा है, ये सब लिख रखा है. रिवर्स एजिंग भी लिख रखा है. एंड देन हर्ब्स फॉर मेन, मोटिवेशनल नॉट रेलेवेंट, ये नॉट रेलेवेंट. प्रोटीन बनाना शेक, दिस इज़ रेलेवेंट, हाई प्रोटीन बनाना शेक. तो यहाँ पे रेसिपीज़ में राइट ब्रेकफास्ट शेक, प्रोटीन शेक. ओके, देन गो डाउन. विटामिन D3, विटामिन E 2 बार आ गया, तो विटामिन के अंदर लिख लेते हैं इसको. विटामिन D3, विटामिन E. ओके, देन देयर इज नी पेन रिलीफ, ये भी योगा में आ गया. जॉइंट पेन में आ जाएगा ये नी पेन रिलीफ. देन यहाँ पे आ जाएगा नीचे योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन. माय गॉड, कितने टाइप के योगास कर रखे हैं इसने. तो मैं बस 1-2 एग्जांपल्स लिख देता हूँ जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पस. सो योगा फॉर कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन, गाइडेड मेडिटेशन, हाउ टू रिलैक्स, हेयर ग्रोथ, या डायबिटीज़ में चीकू. तो ये प्री डायबिटीज़ है. तो डू रिमेंबर प्रिवेंटिव हेल्थ हमने लिखा था कहीं पे, यहाँ पे नीचे. तो यहाँ पे नीचे यू कैन जस्ट राइट प्री डायबिटीज़. ठीक है. फूड, आलू पराठा, स्टफ्ड आलू, ओजीविया, कैल्शियम, विटामिन 3, स्ट्रॉन्ग बोन्स. तो यहाँ पे कैल्शियम लिख सकते हो तुम. देन स्ट्रॉन्ग बोन्स प्रिवेंटिव हेल्थ में तुम डाल सकते हो. ठीक है, नीचे आओ. हाई प्रोटीन शेक, हाई प्रोटीन स्नैक, ये स्नैक बनाने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे
just gonna write protein snack. प्रोटीन स्नैक, नीचे जाओ, vitamins and minerals benefits, bicep curl, ready to bench press, nutritionist, summer coolers, एप्पल जूस, यहाँ पे जूस भी आ रहा है तो यहाँ पे मे बी जूस भी लिख दो, स्मूदीज़ भी आ रहा है, सो यहाँ पे जस्ट राइट स्मूदीज़ ऑल्सो। देन यहाँ पे 3 years ago लूज वेट साइड प्लैंक, बाकी आई थिंक कवर कर लिया है हमने, ठीक है, यही है ऑल। सो ये आपका हो गया मोटा मोटा कीवर्ड का एनालिसिस। कि व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट वेंट ऑन टाइप्ड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन के अराउंड जो भी आ रहा है कीवर्ड्स वो सब देखा, A to Z जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश कीबोर्ड में, उनके अराउंड उनको टाइप करके हमने देखा कि न्यूट्रिशन के अराउंड कौन से कीवर्ड्स आते हैं, एंड जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। फर्दर इसको हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड लिखेंगे, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो हियर एंड इफ यू कैन टाइप, यू कैन जस्ट टाइप न्यूट्रिशन फूड एंड यू कैन फर्दर कीप एडिंग कीवर्ड्स टू दिस, सो यू कैन जस्ट टाइप न्यूट्रिशन यहाँ पे second, for some reason my laptop seems to be stuck। रिकॉर्ड स्टॉप करते हैं, अभी लगता है कुछ ज़्यादा ओवरलोड हो गया है।